Assalamu alaikum warahmatullah. In today's lecture, we will discuss about how to calculate the area of plane figures. For that, our topic will be area of plane figure and subtopic will be area of combined figures. For that, we will solve a question from exercise 7b, page number 210. Question number 9, part A. For each of the following figures, find the total area of the shaded regions where O is the center of the circle. सबसे पहले हम इस फिगर को एनालाइज करेंगे कि ये फिगर में बेसिकली कौन कौन सी शेप है। इसके लिए लेट अस कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी हम लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो हमें कंबाइंड फॉर्म में नहीं गिवन बल्कि पार्ट्स में गिवन। हम उनका टोटल करते हैं। वी हैव अ लेंथ ऑफ 26 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। सो इट्स ए रेक्टेंगल बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर 90 डिग्री एंगल्स and the length and breadth are not same, so it is a rectangle. And now let us analyze the inside shapes. First of all, we have a parallelogram inside, and the second shape is triangle. Third shape is circle. So we have to calculate the area of the shaded region. For that, we will take the area of the whole figure and then we will subtract the area of the following figures. Then we can get the area of the shaded region. So simply we need to calculate the area of shaded region. For that हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के बाद इसमें हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड देन एट लास्ट वी विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए सर्कल। इन सब को करने के लिए हमें बेसिक दो चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले हमें वी ऑल मस्ट नाउ हाउ टू रिकग्नाइज द फिगर्स एंड द सेकंड वी ऑल मस्ट नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फॉर दैट वी विल रिवाइज द फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर. In order to calculate the area of a rectangle, we know the formula is length multiplied by breadth. For calculating the area of a parallelogram, the formula is base multiplied by height. In order to calculate the area of triangle, we know the formula is 1 over 2 base into height. And in order to calculate the area of circle, we know the formula is pi r square. So we need to calculate the area of rectangle and then we need to subtract the areas of the following figures so we can get the area of the shaded region. So first of all, we need the area of the rectangle. For that we need length and breadth, and for the area of parallelogram we need base into height, and for the area of rectangle we need 1 over 2 base into height, and for the area of circle we need to calculate the value of pi r square. So first of all, let us calculate the value of length and breadth, and that is 26 centimeter its length and 25 centimeter its breadth. We will add up the values. ये जितनी नीचे वाली values हैं 12 और 14 इनको add up कर लेंगे। 26 इसकी length आ गई हमारे पास और 15 और 10 जो हमने इसके add up कर लिया तो ये हमारी इसकी breadth आ गई। अब ये values हम put कर देंगे अपने फार्मूला के अंदर तो हमारे पास आ गया 26 multiplied by 25. Now we need to calculate the values of parallelogram. For that हमारे पास हाइट क्योंकि वो 90 डिग्री के ऊपर है तो वो सिंपली 10 सेंटीमीटर हमें एक साइड पे मिल गई। अब क्योंकि ये होल फिगर जो है वो एक रेक्टेंगल है तो जैसे कि 26 सेंटीमीटर नीचे वाली लेंथ है तो ऊपर वाली लेंथ भी जो है इसकी अपोजिट जो लेंथ है वो भी 26 सेंटीमीटर होगी। लेकिन पैरेललोग्राम की लेंथ इसमें कुछ कम है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम 26 में से जो दो साइड लेंथ हैं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। सो हमारी पैरेललोग्राम का डाटा हमारे पास आ गया जो कि हमारे पास उसकी बेस है 19 और उसकी हाइट है 10। और अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वो तो हमें सिंपली इधर से भी नज़र आ जाएगा, इसमें बेस हमारी 12 है जबकि हमारी जो हाइट है वो है 15। एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वेयर वी विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज़ 4 सेंटीमीटर और उसका हम स्क्वेयर ले लेंगे। नाउ विल कैलकुलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स। 26 multiplied by 25 we will get 650, and 19 multiplied by 10 we will get 190, 12 multiplied by 15 we will get 180 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650 माइनस 190, 182 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 90 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से और डिवाइड कर देंगे 7 से तो हमारे पास आ जाएगा 50। नाउ विल सब्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दिस वैल्यू फ्रॉम 650 तो हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 319.72। दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वो एरिया है जो शेडेड रीजन का हमने सिंपली बाकी सारे एरियाज कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब आवर चैनल in order to get more videos like this. Allah Hafiz.